Hello students, I welcome you all to today's session. I hope all of you are doing good. So today's topic is clothes we use. Learning topics, kinds of clothing, uniform. All of us wear clothes of different types. Clothes are very important for us. They protect us from heat, rain, cold and dust. Also, they make us look smart and attractive. We should always wear clean and iron clothes. तो आपको जैसे कि पता ही होगा कि आपके आसपास के जो लोग हैं वो अलग अलग टाइप के कपड़े पहनते हैं. आपको अलग अलग सीजन्स में, गर्मी में, ठंडी में, रेनी सीजन में, विंडी सीजन में, ये आपको उन चीज़ों से बचाते हैं. और अलग अलग टाइप के कपड़े, यहाँ तक कि जो साफ सुथरे कपड़े होते हैं वो आपको स्मार्ट और अट्रैक्टिव दिखाते हैं. Kinds of clothing. Summer is hot, we wear cotton clothes in summer. In summer, we sweat a lot. Cotton clothes are light and keep us cool. They absorb sweat. Cotton, used to make vest shirts, t-shirts and skirts. We get cotton from cotton plants. तो गर्मियों के टाइम पे बहुत गर्मी होती है, इस वजह से हमें लाइट और कॉटन के कपड़े पहनना पसंद है क्योंकि कॉटन पसीने को अब्जॉर्ब कर लेता है. कॉटन हमें मिलता है कॉटन प्लांट से. In winter, we wear clothes that keep us warm, such as sweaters, pullovers, mufflers, caps, socks, etc. Warm clothes are also worn in places that are very cold, such as the mountains. Clothes made of wool are warm. We get wool from sheep, lamb, camel, and even rabbit. तो सर्दियों में बहुत ज़्यादा ठंड होती है, इस वजह से हमें वुलन यानी कि गर्म कपड़े पहनना पसंद है. ऐसी बहुत सारी जगह होती हैं जैसे माउंटेनियस या फिर हिली रीजन्स जहाँ पे हमेशा ही सर्दी रहती है, वहाँ के लोग भी गर्म यानी कि वुलन कपड़े पहनते हैं. वुल हमको अलग अलग टाइप के जानवरों से मिलता है जैसे कि शीप, लैम्ब, कैमल और यहाँ तक कि रैबिट से भी. We also use the skin of some animals as leather. We use leather to make clothes, shoes, bags, belts, wallets, purses, etc. We get leather from the skin of cows, buffaloes, goats, snakes, etc. और हम लेदर से बने हुए कपड़े भी पहनते हैं. लेदर जो होता है अलग अलग टाइप के जानवरों की स्किन से बनता है. Knowledge corner. We should not wear clothes made of fur and leather because animals have to be killed to get these things. जितने भी कपड़े आपके लेदर और फर से बनते हैं आपको वो बिल्कुल भी नहीं पहनने चाहिए, चाहे जितने भी अच्छे लगे, क्योंकि ऐसे कपड़ों को खरीदने से आप एनिमल इंक्रोचमेंट को हिट करते हैं. यानी कि ऐसे कपड़ों को बनाने के लिए हम लोगों को उन जानवरों को मारना पड़ता है. तो ऐसे कपड़े मत पहनिए. Do you think we should kill animals for our clothes? We sometimes wear clothes made from silk in winter. We get silk from silkworms. तो आपको लगता है कि हमें जानवरों को मारना चाहिए हमारे कपड़ों के लिए, क्योंकि ऐसे बहुत सारे कपड़े होते हैं जैसे कि सिल्क, जो सिल्क वर्म नाम के जानवर से हमें मिलता है, जिनके लिए हमें उनको मारना पड़ता है. Knowledge corner. Silkworms are killed in order to get silk from them. It is not a good thing to do so. सिल्क वर्म जो जानवर जिससे हमें सिल्क मिलता है, हमें उसको मारना पड़ता है ताकि हमें सिल्क मिले, और ये बिल्कुल भी अच्छी चीज़ नहीं है. In the rainy season, we use things that protect us from the rain and keep us dry. These things are usually made of rubber and plastics such as raincoats, gumboots, umbrellas, etc. तो जिस टाइम पे बारिश हो रही होती है उस टाइम पे हम ऐसे कपड़े पहनते हैं जो प्लास्टिक या रबर से बनता है, जैसे आपके गमबूट्स हो गए, रेनकोट्स हो गए, अम्ब्रेलाज हो गए. ये सारी चीज़ें हमें बारिश से बचाती हैं. People in different countries wear different types of clothes. Here are some people from different countries in different styles of clothes. अलग अलग कंट्री के लोग अलग अलग टाइप के कपड़े पहनते हैं. People from India. पहले आपको people from India दिखेंगे किस टाइप के कपड़े पहनते हैं. People from Japan, people from Scotland, people from Greenland. तो अलग अलग जगहों के लोग अलग अलग टाइप के कपड़े पहनते हैं. Uniform. Uniforms are special clothes. Can you describe your uniform? Do you wear the same uniform in winter and summer? Like you wear a uniform in school, there are other people too who wear a uniform at their workplace. तो अलग अलग लोगों की, जैसे आपकी स्कूल में विंटर और समर्स में अलग अलग यूनिफॉर्म होती है, कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जिनकी अपनी जॉब या प्रोफेशन के हिसाब से उनको यूनिफॉर्म दी जाती है. पुलिस, सोल्जर्स, शॉफर्स, फायर फाइटर्स, porters, postmen, sailors, pilots, nurses and miners are some people who wear uniform. तो ये आपके अलग अलग टाइप के कुछ ऐसे प्रोफेशनल्स थे जो अपनी अपनी यूनिफॉर्म्स पहनते हैं.
Knowledge Corner. Jute is one of the most affordable natural fibers and is 100% eco-friendly. जूट एक ऐसा अफोर्डेबल यानी कि सस्ता फाइबर होता है और बिल्कुल 100% इको-फ्रेंडली होता है, बिल्कुल भी हमारे एनवायरनमेंट को हार्म नहीं करता. You must have taken a ride in the railway train or an aeroplane. Have you seen that the railway attendants and the air hostesses also wear smart uniforms? तो जब आप ट्रेन्स में या फिर एरोप्लेन्स में कभी जाएंगे तो आप नोटिस करेंगे कि वहाँ के जो एयर होस्टेसेस होते हैं, जो आपको खाना या आपकी हेल्प करते हैं, वो भी अलग टाइप की यूनिफॉर्म पहनते हैं. We should keep our clothes clean and wash them regularly. It is a healthy habit to wear clean clothes. हमेशा साफ सुथरे और आयरन्ड कपड़े पहने ताकि आप स्मार्ट एंड अट्रैक्टिव लगें. Now I know we wear clothes to cover our body. In the summer season we wear cotton clothes. In the winter season we wear woolen clothes. People in different countries wear different types of clothes. People wear special clothes called uniforms according to the work they do. तो हमने आज इस चैप्टर में जाना अलग अलग टाइप के कपड़े, कौन किस टाइप के कपड़े पहनता है, यूनिफॉर्म में कितने टाइप्स होते हैं, समर्स में हम कैसे कपड़े पहनते हैं कॉटन के, विंटर में हम वुलन कपड़े पहनते हैं, अलग अलग लोगों की अपने प्रोफेशन के हिसाब से यूनिफॉर्म्स होती हैं. तो ये सारी चीजें हमने आज इस चैप्टर में पढ़ी. स्टूडेंट्स, हियर कम्स द एंड ऑफ दिस चैप्टर. इसकी जितनी भी एक्सरसाइजेज हैं वो आपको खुद से करनी है.